Okay, hello everyone, welcome back to class Azal, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important, very beautiful concept of the chemistry, that is different velocities of gases molecule. At the previous lecture we have discussed very important kinetic molecular theory of gases. According to kinetic molecular theory of gases, all the gases consist of particle named as molecule, and they are continuous in motion. They are collide with each other and also with wall of container, and the collision is perfectly elastic, and due to collision the molecule of the gas can exert a pressure. And one of most important, that there is no force of attraction among the gas molecule, and the volume of the gas is 0, and there is no effect of the gravity on gases molecule, and the absolute temperature is directly proportional to the average kinetic energy of the molecule. And also with same temperature, the average kinetic energy of the different molecule is same. So that is all about KMT, which is discovered, which is presented by Bernoulli in 1738. So today we will discuss another very important topic of chemistry on ETA point of view and decade point of view and NEET point of view and also exam point of view, that is different velocities of the gases molecule. Remember, there are main three different velocity which is possible of the gases molecule. The first one is average velocity, which is also called mean velocity. The second one is mean square velocity, and the third one is root mean square velocity, and the fourth one is most probable velocity. So there are main four types of the velocity which is possible on the gases molecule. So let me explain one by one. The first velocity, that is known as average velocity or mean velocity. Average velocity or mean velocity very simple. इसका मतलब ये है कि सपोज अगर एक कंटेनर में 100 गैस के मॉलिक्यूल है, तो जो 100 मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल्स की अपनी स्पीड होती है, अपनी वेलोसिटी होती है. ज़रूरी नहीं है कि 100 मॉलिक्यूल है, सबकी मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी सेम हो. नो, कोई तेज़ भाग सकता है मॉलिक्यूल, कोई स्लो भाग सकता है, कोई मॉडरेट भाग सकता है. तो कहने का मेरा मतलब है कि जितनी भी मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस होते हैं, सबकी डिफरेंट स्पीड होती हैं, डिफरेंट वेलोसिटी होती है. अगर हम ऐसा कर लेंगे, सपोज़ अगर गैस के 100 मॉलिक्यूल है या 50 मॉलिक्यूल है, जितनी भी मॉलिक्यूल्स है, हर मॉलिक्यूल्स की जो अपनी स्पीड है, वेलोसिटी है, वो मालूम करके उन वेलोसिटी को अगर हम प्लस कर दें और फिर उसको जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उस पर डिवाइड कर दे, सो जो वेलोसिटी बनेगी दैट इज़ एवरेज और मीन वेलोसिटी.
क्या मतलब? Suppose that is the mean velocity is equal to the speed of the first molecule, or velocity of the first molecule, velocity of the second molecule, or speed, you can also say speed, velocity, speed, they are same. अगर हम कह दें that is the speed of third and that is the speed of fourth and so on, जितनी भी molecules हैं सबकी स्पीड अगर हम मालूम करके उनका प्लस ले ले, सम कर दें और उसको फिर डिवाइड कर दें जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज़ अगर हमारे पास 50 मॉलिक्यूल है तो सारी बात है, हर मॉलिक्यूल्स की अपनी स्पीड होती है, अपनी वेलोसिटी होती है। सबकी वेलोसिटी मालूम करके उनका सम ले और उसको 50 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी, स्पीड आएगी, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी or that is called mean velocity. So once again, what is the average velocity? Suppose अगर 100 molecule of the gas है या 50 molecule of the gas है, हर molecules की अपनी velocity होती है, तो हर molecules की जो velocity है मालूम करके सब को प्लस कर दे और उसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो 100 पे डिवाइड कर दे, अगर 50 मॉलिक्यूल है तो 50 पे डिवाइड कर ले, 1000 मॉलिक्यूल है 1000 पे डिवाइड कर ले, अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल है तो 1 करोड़ पे डिवाइड कर ले। मतलब सबकी वेलोसिटी प्लस करके उतनी ही मॉलिक्यूल्स पे अगर हम डिवाइड कर दे तो जो स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी, उसका नाम है एवरेज स्पीड, या दैट इज़ आल्सो कॉल्ड मीन वेलोसिटी। इसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं या इसको हम मीन वेलोसिटी कहते हैं। सो ये वाला फार्मूला बनेगा। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, वो रिलेशन आपने मस्ट याद करना है बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। रिलेशन क्या है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है या मीन वेलोसिटी जो होती है, दैट इज़ इक्वल टू 8RT divided by pi m under root. Very important relation. Average velocity or mean velocity, that is equal to 8RT divided by pi m under root. इसमें R क्या है? That is universal gas constant, you know. Universal gas constant है, its value is 0.0821 atm dmq per mole per Kelvin. T is absolute temperature, pi is constant, and m is the molar mass of the gas. So the average velocity or mean velocity is equal to 8RT divided by pi m under the root. That is very important relation. बात समझ आ रही है ना? Okay. So जो second velocity है, that is what? That is mean square velocity. So अब देखते हैं कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी तो ये हुआ कि जितनी भी मॉलिक्यूल्स है सबकी वेलोसिटी अगर हम प्लस कर दे और उसको डिवाइड कर दे बाय नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, सो दैट इज़ मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। अब देखते हैं कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखिए, वेरी सिंपल, नाम से ज़ाहिर है कि अगर हम मीन वेलोसिटी का स्क्वायर ले लें, अगर मीन वेलोसिटी का स्क्वायर लिया जाए, सो दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या मतलब मीन वेलोसिटी का स्क्वायर लिया जाए? व्हाट इज मीन वेलोसिटी? ये मीन वेलोसिटी है, हर एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी प्लस करके डिवाइडेड बाय n। इसी तरह अगेन हर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर अगर हम प्लस कर दे, स्क्वायर 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 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय उसका एवरेज ले, सो दैट इज नोन एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए वही मीन वेलोसिटी है लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज़ ऐड हुआ, दैट इज स्क्वायर। सो आपने अगेन वही करना है, जितनी भी मॉलिक्यूल्स है सबकी स्पीड लेके प्लस करके डिवाइडेड बाय n करना है। तो इधर भी ऐसे ही है, सबकी वेलोसिटी मालूम करके प्लस करके डिवाइडेड बाय n करना है, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर का प्लस लेके सम करके उसको n पे डिवाइड कर ले। सो दैट इज नोन इज व्हाट? दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बात समझ आ रही है ना? सो जो नेक्स्ट वेलोसिटी है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी।
देखिए अब एक और वर्ड भी साथ ऐड हुआ। कौन सा वर्ड ऐड हुआ? देखिए ऊपर वाले में मीन वेलोसिटी थी, यहाँ पे स्क्वायर वर्ड ऐड हुआ था, सो मैंने उन सब का स्क्वायर लेके डिवाइडेड बाय n किया। अब एक और वर्ड ऐड हुआ, देखिए बाकी वही है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये भी है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हुआ दैट इज रूट। सो अगर ऐसा किया जाए, सुने कि अगर सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर लेके हम प्लस कर दे और डिवाइडेड बाय n कर दे और उसके बाद उसका अंडर रूट लिया जाए, उसके बाद क्या कर ले, अगर उसका अंडर रूट लिया जाए, सो द वेलोसिटी जो बनेगी दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वंस अगेन, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? मतलब जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मतलब सब वेलोसिटी का स्क्वायर लेके डिवाइडेड बाय n, सब वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस करके डिवाइडेड बाय n, दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर हम अगेन ऐसे कर दे कि सब वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस करके डिवाइडेड बाय n कर दे, लेकिन साथ अगर उसका अंडर रूट लिया जाए, तो फिर जो वेलोसिटी बनेगी दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको फिर हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहेंगे। और इसका भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद होना चाहिए, दैट इज कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT divided by molar mass under root. That is very important relation. 3RT divided by m under root, that is known as root mean square velocity. That is known as root mean square velocity. Very important relation on ETA or MDK point of view. An exam point of view, that CRMS, that is root mean square velocity, that is equal to 3RT divided by m. Again R is a general gas constant, T is absolute temperature and m is the molar mass of the gas. So once again let me explain again what is average or mean velocity. जितने भी number of molecules है, सबकी अपनी speed होती है, they may be same or different. जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर उनका स्पीड हम प्लस करके डिवाइडेड बाय n कर ले, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने हैं, सो दैट इज कॉल्ड मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। और इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद होना चाहिए, द एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 8RT डिवाइडेड बाय पाई m, और ऊपर वाला भी रिलेशन याद रखें। सेकेंड जो वेलोसिटी दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अगेन अगर सबकी वेलोसिटी का सम करके डिवाइडेड बाय n कर दे, लेकिन अब सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर हमने सम करके डिवाइडेड बाय n करना है, सो दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एंड रूट मीन स्क्वायर में हमने सब वेलोसिटी का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय n करके और उसके बाद उसका अंडर रूट लेके, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज 3RT डिवाइडेड बाय m। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके, सो हमारा जो फर्स्ट वेलोसिटी था दैट इज एवरेज वेलोसिटी, वो तो हो गया, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। रिलेशन आपको ये याद रखना चाहिए। एंड द सेकेंड इज के एवरेज का स्क्वायर लेके, आई एम सॉरी, वेलोसिटी सब का स्क्वायर लेके प्लस कर दें, सो दैट इज स्क्वायर मीन वेलोसिटी। और अगर सब का स्क्वायर लेके प्लस करके डिवाइडेड बाय n अंडर रूट भी लिया जाए, सो दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नाम से जाहिर है, बात समझ आ रही है ना सबको? एंड द लास्ट वेलोसिटी दैट इज नोन एज व्हाट, that is most probable velocity. So now let me explain that what is most probable velocity. Most probable velocity क्या होता है? So the velocity that is number 4, that is called most probable velocity. देखिए most probable नाम से ज़ाहिर है, most probable
which is represented by V most probable, VMP। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, नाम से भी ज़ाहिर है। देखिए सपोज अगर अगेन 100 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है, एक कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है। मैंने ऐसा कर दिया कि 100 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस जो है कंटेनर में, आंखें बंद करके वहाँ से एक मॉलिक्यूल्स को उठा दिया और मैंने इसका स्पीड देखा तो वो था सपोज 50। इसी तरह फिर आंखें बंद करके एक और मॉलिक्यूल से उठा दिया तो उसका भी स्पीड 50 था। 100 मॉलिक्यूल है टोटल। एक और मॉलिक्यूल उठा के उसका स्पीड चेक कर दिया, वो 30 था। एक और मॉलिक्यूल उठा के उसका स्पीड चेक किया, 60 था। एक और उठा के 50 था। एक और उठा के 80 था। मतलब हमारे पास जो 100 मॉलिक्यूल है थे, उसकी जब मैंने अलग अलग वेलोसिटी चेक कर दी तो 30 मॉलिक्यूल ऐसे थे 100 में से जिनकी वेलोसिटी आ रही थी 50 मीटर पर सेकेंड सपोज, और 70 मॉलिक्यूल ऐसे थे 100 में से जिसकी डिफरेंट वेलोसिटी आ रही थी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। मतलब 100 में से 70 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिसकी डिफरेंट वेलोसिटी आ रही थी 1, 2, 10, 15, 20, 30, 60, 80, 90 जो भी है। लेकिन 100 में से 30 मॉलिक्यूल, 30 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिसकी एक ही वेलोसिटी मालूम हो गई, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। So the 50 meter per second velocity is called a most probable velocity। इसको most probable velocity कहते हैं। मतलब कि वो velocity जो मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल्स की सेम हो, दे आर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। बात समझ नहीं आई? मतलब सपोज एक क्लासरूम में डिफरेंट बच्चे हैं, वो डिफरेंट मार्क्स लेते हैं पेपर में, केमिस्ट्री का पेपर है, डिफरेंट मार्क्स लेते हैं, 40 बच्चे हैं, लेकिन उसमें 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 50 में से 49 मार्क्स है, 8 बच्चे, और बाकी जो 40 में से 32 बच्चे रह गए, उसके 50 में से डिफरेंट मार्क्स है, किसी की 20 है, 15 है, 10 है, 2 है, 0 है, 40 है। ज़्यादा बच्चों के मार्क्स कौन से हैं सेम, दैट इज 49। सो द 49 इज अ मोस्ट प्रोबेबल, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। तो इसी तरह जो मॉलिक्यूल ऑफ द गैस होते हैं, ठीक है सबकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसकी वेलोसिटी सेम होगी, देन सच अ वेलोसिटी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूलों की सेम है, that is called most probable velocity। बात समझ आ रही है ना? That is most probable velocity। and most probable velocity किसके बराबर है? very important relation, that is equal to, देखिए रूट मीन स्क्वायर किसके था? 3RT डिवाइडेड बाई m। ये है 2RT डिवाइडेड बाई m। बस जस्ट यही फर्क है कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, बाकी RT बाई m इधर भी है। सो कितने तरफ वेलोसिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिए? 4। द फर्स्ट वन इज मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी का मतलब है कि जितनी भी मॉलिक्यूल्स है सबकी जो वेलोसिटी है प्लस करके डिवाइडेड बाई n कर ले। मतलब सपोज क्लासरूम में अगर 50 बच्चे हैं, केमिस्ट्री टेस्ट में सब ने जो मार्क्स लिए हैं, किसी ने 50 में से 10 लिए हैं, किसी ने 50 में से 20, किसी ने 50 में से 50, 49, 30, 40 मुख्तलिफ बच्चे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मार्क्स लिए हैं। सो आप ऐसा कर ले कि जितनी भी मार्क्स है, किसी की 10, 20, सब के जो मार्क्स है वो प्लस करके डिवाइडेड बाई 50 कर ले, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने हैं क्लास में, 50 स्टूडेंट है, तो सबके जो मार्क्स है प्लस करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 कर ले। सो आपके पास आ जाएगा क्या? एवरेज, मीन आ जाएगा। सो इसी तरह
सबकी वेलोसिटी प्लस करके डिवाइडेड बाय n कर ले, सो दैट इज मीन। फिर अगर सबकी वेलोसिटी जो प्लस कर रहे हैं अगर उसका आप स्क्वायर प्लस करके डिवाइडेड बाय n कर ले, सो दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर अगर उनका जो सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर आप प्लस कर रहे हैं डिवाइडेड बाय n, अगर उसके बाद उसका अंडर रूट भी लिया जाए, सो दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब है कि सपोज वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूलों का होता है, मैक्सिमम मॉलिक्यूलों का। सपोज 100 में से 30 मॉलिक्यूलों का 50 मीटर पर सेकेंड है और बाकी 70 का डिफरेंट है, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलों का कौन सा वेलोसिटी है? 50। सो द 50 मीटर पर सेकेंड इज नोन एज अ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। बात समझ आ रही है ना? और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूँ कि जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज 8RT डिवाइडेड बाई 5m and root mean square is a 3RT divided by m and most probable is 2RT divided by m। ये फॉर्मूले याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज है, बड़े ईटा एमडीकेट में बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर तीनों वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूल की सबसे ज़्यादा होगी? तीनों में कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? देखिए, एक कौन सी है? मेन वेलोसिटी। दूसरी कौन सी है? दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और नंबर 3 कौन सी है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब मुझे बताएं मीन एवरेज वेलोसिटी क्या है? 8RT डिवाइडेड बाई 5m अंडर रूट। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? 3RT डिवाइडेड बाई m under root and that is 2RT divided by m under root। तो कौन सा फैक्टर इन तीनों में डिफरेंट है? देखिए, तीनों में जो आपने इसको इस तरह भी याद रखना है कि तीनों में जो फैक्टर डिफरेंट है, देखिए RT डिवाइडेड बाई m, RT डिवाइडेड बाई m, RT डिवाइडेड बाई m तो तीनों में है। ये वर्ड ज़रूर याद रखना। आई एम सॉरी, ये चीज़ RT डिवाइडेड बाई m ये तो तीनों में है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 8 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, 2 अंडर रूट। मतलब है कि यही फैक्टर है जो तीनों में डिफरेंस है। बाकी RT बाई m, RT बाई m, RT बाई m तो तीनों में। ये 3 फैक्टर आपको याद होने चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबल में 2 अंडर रूट है, रूट मीन स्क्वायर में 3 अंडर रूट है, इसमें 8 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट है, बाकी तो RT डिवाइड बाई m सब में सेम है। तो देखते हैं कि किसकी वैल्यू इन तीनों में ज़्यादा होती है, तो सारी बात है उसकी वेलोसिटी भी फिर ज़्यादा होगी। RT बाई m तो कॉमन है तीनों में। अब 3 अंडर रूट जो है, अगर आप 3 अंडर रूट ले ले तो ये 1.7 के बराबर है। 3 अंडर रूट इज़ 1.7 और 2 अंडर रूट जो है 2, ये 1.4 के बराबर है, 1.4। और 8 डिवाइडेड बाई पाई करके 8 डिवाइडेड बाई 3.14 उसका अंडर रूट ले ले, सो दैट इज 1.59 के बराबर है। RT डिवाइडेड बाई m तो तीनों में कॉमन है। तो जिस फैक्टर से डिफरेंट है तीनों वेलोसिटी 8 डिवाइडेड बाई पाई, 3 अंडर एंड 2 अंडर रूट, वो फैक्टर किसका ज़्यादा है? 3 अंडर रूट सबसे ज़्यादा है। 3 अंडर रूट किसका है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। सो इसका मतलब ये हुआ कि रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 1.4 ज़्यादा, 1.5 ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा। ये किसका है? ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो तीनों में कौन सा वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ईटा और एमडीकेट और नीट पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है,
याद रखिए मॉलिक्यूलों की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती हैं एवरेज से, और सबसे ज़्यादा होती हैं एवरेज ज़्यादा होती है मोस्ट प्रोबेबल से। इसका मतलब है कि सबसे कम वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल होती है और सबसे ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर होती है। एवरेज, जैसा कि एवरेज है तो ये बीच में होगा, ये दरमियान में है, सारी बात है, एवरेज है तो दरमियान में होगा। एवरेज दरमियान में है, रूट मीन स्क्वायर फर्स्ट है, मोस्ट प्रोबेबल लास्ट है। मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है मॉलिक्यूलों की, रूट मीन स्क्वायर सबसे ज़्यादा होती है और ये बीच में दरमियान में है। बात समझ आ रही है ना? सो दैट इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल और इसके दरमियान रिलेशन फार्मूले और विच वन इज़ ग्रेटर देन, ये ज़रा वेरी इंपॉर्टेंट एमडीकेट ऑन ईच पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज अगर क्वेश्चन आ जाए कि जी टू मॉलिक्यूल है, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सपोज किसकी जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ऑप्शन में दिया है। तो फिर अगर आपको ये चीज़ याद है कि सबसे ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर होता है, सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल होता है और एवरेज बीच में होता है, तो अगर आपको डिफरेंट वैल्यू दी हैं कि जी एवरेज वेलोसिटी जो है वो इतना है, ये इतना है, तो हमेशा याद रखिए जो रूट मीन स्क्वायर है सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होता है, एवरेज दरमियान में आता है। तो नेक्स्ट हम इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। सपोज अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री, so what is the relation of the root mean square velocity? That okay, 27 degree is absolute scale, so 27 degree को आप Kelvin में convert कर दें। Support in here, R is a constant, you know, M that is the molar mass of that gas, जिसका आपने root mean square velocity मालूम करनी है, किसकी करनी है, ऑक्सीजन, so 16। So molar mass of the oxygen पता है, R is universal constant, 3 is constant, so 27 degrees, so T convert to absolute Kelvin temperature, so put the value, so take an under root, so that is root mean square velocity of that molecule। so ये relation से आपने numerical हल कर दिया। बात समझ आ रही है ना सबको? so that is all about different velocity of the gaseous molecule, which is very important, again exam point of view, eta point of view, MDK point of view, and NEAT and so point of view. Thank you very much for watching this video.